नमस्कार. Let's move further in the topics of matter in our surroundings. Most of the students do not done the homework. What to do with them, I really don't know because I am on the distance. So please make sure to perform your homework. That's your duty. These are not your vacations or holidays. These are the working days. Okay? So perform your duties efficiently. Do not watch movies, do not watch serials. This will affect you in your life further. So time is very precious material. It never comes back. This is the precious time you got. So make sure to study well and check your homework. Now the next topic is I gave you homework on every alternate day. So check it and then solve it. Check it and then solve it. Some of the students even do not check the homework which I gave. I don't think so. Many of you can hear or watch these lectures. But when I give you test and if any of you do not perform in the test, then I will give you punishment. So beware of it. Test must be in the coming week. So prepare for that. Okay. The common unit of temperature and the SI unit of temperature. So this is the next topic. The common unit of the temperature and the SI unit of the temperature. What is the common unit of the temperature which we use? Celsius. Okay. We use Celsius, we use Fahrenheit. Most of the people use Celsius. What is today's temperature? Maybe 25 degree Celsius. And what's the temperature of human body? What's the temperature? Do you have fever? In all these conditions, we use either Fahrenheit or Celsius. But we can also use Celsius too, because in the clinical thermometer there are two parameters given. First one is Fahrenheit and second one is Celsius. So we can use either of two. Okay. So most common unit for measuring the temperature is Celsius. We call it degree Celsius. Okay. The freezing point of the water, or we can say solid water, which we called it, we called it ice. So the freezing temperature of the water is 0 degree Celsius, and the boiling point of the water is 100 degree Celsius. So these are the some examples from our everyday life where we use Celsius. So there is another unit of temperature which we called Kelvin. Kelvin is the unit used by the scientists. What is the difference between Kelvin and Celsius? There is a huge difference. And what is the advantage of using Kelvin over Celsius? Let me tell you. The advantage is at very surface level. The advantage is Kelvin never be in the negative. If I ask you what is the temperature of Srinagar, you can tell me that it's -2, it's -5. So it's -2 degrees Celsius, it's -5 degrees Celsius.
but the temperature in the Kelvin can never go in the negative. It has its corresponding in the positive. Okay, so let's say if the freezing point of the water is 0 degree Celsius. Okay, so freezing point of the water is 0 degree Celsius. 0 degree पे आइस बन जाती है, तो that will be equals to 273 273 डिग्री, डिग्री नहीं कहेंगे, केल्विन में हम डिग्री नहीं कहते, 273 फ़ारेनहाइट, सॉरी 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमको ये बात पता चलती है, मैं एक बार दोबारा से हिंदी में बता दूं सारे बच्चों के लिए, कि पहली बात तो ये कि केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं जाता है, जैसे डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में जाता है, तो ये उसकी एडवांटेज है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर होगा केल्विन में। ऐसे नहीं होता कि अगर माइनस में नहीं जाता है तो केल्विन में माइनस वाले नहीं होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव में होते हैं। जैसे कि जो 0 डिग्री है तो केल्विन में वो कितना होगा, 273 डिग्री। ओके, सो इसी के साथ हमको एक रिलेशनशिप भी मिल गई। क्या रिलेशनशिप मिल गई? केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. Okay, so this is the relationship. Let me write it down and then I will show you. Kelvin equals to Celsius plus 273. So this is the relationship between Kelvin and Celsius. Kelvin equals to degree Celsius plus 273. So if I have to find out the temperature, in Kelvin, then I just add 273. I have to just add 273 in the degree Celsius temperature of the same. So if the temperature of Srinagar is -2, then -2 degree Celsius, then what is in the Kelvin counterpart? So Kelvin equals to, put -2 on the place of C, -2 plus 273, what it is? It is 271 degree, it is 271 Kelvin. Okay, so this is the temperature. Now let me tell you, if I have to find the boiling point of the water, what is the boiling point of water? Is 100 degree Celsius. So put 100 degree on the place of degree Celsius and add it to 273. So what is the Kelvin temperature in, so what is the boiling temperature of water in Kelvin? It will be 373 because we add 100 in 273. Okay, so this is the relationship. Here we also find, if we have the temperature in Kelvin and want to convert it into Celsius, then ये 273 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, so डिग्री सेल्सियस विल बी Kelvin minus 273. ओके, वो माइनस में हो जाएगा। तो इनमें से जो भी चीज निकालनी हो उसको एक तरफ करके बाकी सबको दूसरी तरफ कर लो, बिल्कुल मैथ्स वाला होगा और हम निकाल लेंगे। जिसको निकालना हो उसको एक तरफ करना है, बाकी जो दूसरी चीज दे रखी होगी उसको दूसरी तरफ। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमको सेल्सियस में निकालना है देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, अगर हमको केल्विन में निकालना है देन वी हैव टू ऐड। ओके, टेम्परेचर। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स होंगे बुक में, वो आप लोगों को करने होंगे, मैं दे दूंगा। टेम्परेचर चेंज करके निकालना होगा, बट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप ऑलवेज। एग्जाम में आएगा 1 या 2 नंबर का, एनसीईआरटी में भी है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
change of state of matter. We know that matter changes its state from solid to liquid, from liquid to gas, and then again from gas to liquid and liquid to solid. So how all this take place? ये सब कैसे होता है, कैसे कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है? हाउ? We know that the particles of the matter are constantly moving and the force of attraction between the particle is the cause of the state. हमें पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो लगातार कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. सॉलिड में वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऑन देयर ऑन प्लेस. लिक्विड में वो ग्रुप्स में मूव कर रहे होते हैं, है ना, और उनसे थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं. किन से ज़्यादा? सॉलिड से ज़्यादा. और गैस में वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कहीं भी. ओके, सो ये बात हमको मालूम है. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और वी कैन ऑल्सो सेड इट लाइक इंटर पार्टिकल फोर्स. तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स होती है या फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, इट इज हायर और ग्रेटर इन सॉलिड. सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है. सो दैट्स व्हाई द सॉलिड इज टाइटली पैक. सॉलिड टाइटली पैक होता है. लिक्विड में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है. जब वो कम हो जाती है तो वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं. और गैस में तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल नाम के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. अब वो चेंज क्यों करेंगे? दो तरीके से चेंज करते हैं. फर्स्ट, टेम्परेचर को चेंज करके. सेकंड, प्रेशर को चेंज करके. ओके, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर को चेंज करके एंड सेकंड वन इज प्रेशर को चेंज करके. लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. उसके टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड, और वी कैन कॉल इट मेल्टिंग. सॉलिड से लिक्विड बनाना यानी उसको पिघालना, उसको मेल्ट करना, ये कैसे होता है? सो देयर आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. फर्स्ट वन इज particles are vibrating on their own place. Second one is the force of attraction is greater. So particles are vibrating on its own place, so the kinetic energy is very low. When we heat it up, जब हम उसको हीट करते हैं तो सडनली जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से दे मूव फास्टर, वो फास्ट मूव करने लगते हैं. When they move faster, the force of attraction also got decreases. It overcomes the force of attraction. वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है और बढ़ा देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. तो बढ़ा देने के कारण जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देने के कारण स्पेस को बढ़ा देती है. किसको बढ़ा देती है? स्पेस को बढ़ा देती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के कारण वो अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को उतना. सो दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है, एक बार मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा तसल्ली रहे. When a solid is heated sufficiently, जब एक सॉलिड को हम sufficiently हीट करते हैं, it changes its physical state and became liquid. वो अपनी physical state को बदल के liquid बन जाता है. This happens as follows. ये कैसे होता है देखते हैं. When a solid substance is heated, the heat energy makes its particles vibrate more vigorously. जो heat energy होती है वो उनके पार्टिकल को और तेज तेज मूव करने लगती है. वाइब्रेट तो वो कर रहे होते हैं पहले अपने में, लेकिन कम कर रहे होते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है. व्हेन वी अप्लाई हीट, जब हम हीट अप्लाई करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी गॉट इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड दे मूव वाइब्रेटली ऑन देयर ऑन प्लेस. अपने प्लेस पे मूव करने लगते हैं. एट द मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उस समय काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है पार्टिकल्स की
वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उस समय तक वो पागलों की तरह से ऐसे घूम नहीं रहे होते, अपने ही स्थान पे, जब तक वो सॉलिड रहेगा वो अपने ही स्थान पे वाइब्रेट करते रहेंगे, लेकिन तेजी से करेंगे। फिर उस वाइब्रेशन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, दे ओवरकम इट, एंड आफ्टर ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द सॉलिड बिकेम लिक्विड। सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस चेंज और बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जब लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज होती है तो हम उसको या तो बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग मतलब उबालना, या उसको वेपराइजेशन कहते हैं, है ना। वेपराइजेशन का मतलब वेपर में कन्वर्ट होना, है ना। वेपर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, तो उसको वेपर में कन्वर्ट होने को और बॉइलिंग दोनों ही कहा जा सकता है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, वो भी बिल्कुल सेम है। अब लिक्विड में जब कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है, वो छोटे छोटे से ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे से ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है सॉलिड से, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वो ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, अपनी ही जगह पे मूव नहीं कर रहे होते, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन इट, जब हम उस पर हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। When liquid is heated to the heat energy makes its particle move even faster. जो उस हीट एनर्जी होती है वो उसके पार्टिकल्स को और तेज और फास्टर मूव करने लगते हैं। एट द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो उस 100 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पार्टिकल्स के अंदर कि वो ओवरकम कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाती है। तो बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, द स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंज हो जाती है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर कैसे चेंज करता है स्टेट को। अच्छा, अभी तक हमने देखा था जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज करता है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। सो दैट मीन्स व्हेन वी हाई द टेम्परेचर, जब हम when we increases the temperature, the state changes from solid to liquid and liquid to gas. And how it state changes, because it overcomes the force of attraction between the particles. When it overcomes the force of attraction between the particles at the melting point from solid to liquid and at the boiling point from liquid to gas. Okay, so next is gas to लिक्विड चेंजेस। अब गैस से लिक्विड में, यानी कि हमारे पास गैस है, मान लो वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर से अगेन हमको उसको लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये कैसे होगा? बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को दोबारा से कम करके। तो ये एग्जांपल तो हमने पहले भी कई बार किया है कि हमारे पास एक स्टीम है और वाटर वेपर्स हैं, उनको हमने एक आइस पैक्स के अंदर से गुजारा, तो दे बिकेम अगेन लिक्विड, है ना, एंड वी कलेक्ट देम। दैट्स द एक्टिविटी व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लासेस। you can do it now also. So this is the activity. एक्चुअली में क्या होता है वो बताते हैं। When gas is cooled down enough, जब गैस को हम बहुत ठंडा कर देते हैं, then its particles lose so much of the kinetic energy. तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो खूब फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं, गवा देते हैं। तो उसके बाद that they slow down, वो स्लो हो जाते हैं, and move closer together, और साथ में आ जाते हैं और पास आ जाते हैं, until they start being attracted to each other, जब तक कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करने लगे। क्या होता है प्रोसेस, दोबारा बताते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि वो जैसे ही कूल डाउन होते हैं, तो मतलब उनका टेम्परेचर कम होता है, तो दे लूजेस काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं। और व्हेन दे लूज द काइनेटिक एनर्जी, अगेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डेवलप। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस से लिक्विड के बीच में, वो डेवलप हो जाता है। तो अट्रैक्ट करने के कारण वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एंड स्टेट चेंजेस, और स्टेट चेंज हो जाती है। किससे? किसमें?
गैस से लिक्विड में, तो ज्यादा पास नहीं आते, थोड़े से पास आते हैं। इफ वी फर्दर लोअर डाउन द टेम्परेचर, अगर हम और ज्यादा लो कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट तक कर देते हैं टेम्परेचर को, यानी कि जो लिक्विड है इट विल बिकेम सॉलिड, उसको हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर देते हैं, और जो उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और बढ़ जाता है, एंड द लिक्विड बिकेम सॉलिड। सो दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट, है ना। लेट मी फर्स्ट चेक how much time we have left. We have enough time to study latent heat. So first of all, what is latent heat? Latent means hidden. What is the meaning of latent? Latent का मतलब होता है hidden, यानी कि छुपा हुआ। तो ऐसी हीट जो छुपी हुई होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब वो छुपी हुई कहां पे है, क्यों छुपी हुई है, तो ये सब हम देखेंगे। दो तरीके की लेटेंट हीट होती है ना। एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड। व्हेनेवर एनी मैटर कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जब कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हमको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलती है। फ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तब हमको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलती है। अच्छा, कैसे मिलती है? ये छुपी हुई हीट कहां पे होती है? एक तुमको एग्जांपल बताता हूं तो तुमको पता चलेगा। हिंदी में ही बताता हूं जिससे कि थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आए तुम्हें। तो भाई उसमें क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, जैसे मान लो कि हमारे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया लिक्विड में, या आइस क्यूब्स नहीं लेते, क्रस्ड आइस लेते हैं। क्रस्ड आइस आप लोगों ने देखी होगी, जो बर्फ गोला बनाने वाला होता है वो उसमें ही यूजेस क्रस्ड आइस, वो क्रस्ड आइस को यूज करता है ऐसे घिस घिस के, वो दैट इज द क्रस्ड आइस। तो उस क्रस्ड आइस को, टेक दैट क्रस्ड आइस इन द बीकर, उसको बीकर में लीजिए, एड अ लिटिल बर्नर, बर्न अ लिटिल बर्नर एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम पे एक छोटा सा बर्नर जलाइए, एंड put a laboratory thermometer in the beaker to measure the temperature of the crushed ice regularly। एक थर्मामीटर को, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को बीकर के अंदर पुट कीजिए टू मेजर द टेम्परेचर रेगुलरली, लगातार टेम्परेचर मेजर करने के लिए। we see that, we observe that the temperature of the ice will not change until it will wholly मतलब पूरी की पूरी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब तक क्रस्ट आइस इतनी सी भी है, एक पॉइंट जितनी भी है बीकर के अंदर, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। आप कहोगे 0 डिग्री तो आइस का टेम्परेचर होता है, तो वहां तो वो पानी बन चुकी है, लेकिन जब तक इतनी सी भी रहेगी ना तब तक उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो ऐसा कैसे? हम लगातार हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो उतना ही है और वो पानी भी बन रही है, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ? दैट इज कॉल्ड हिडन हीट। इसी को छुपी हुई हीट कहते हैं, यानी कि लेटेंट हीट कहते हैं। उस हीट का क्या हुआ जो हमने उसको भेजी, वो कहां चली गई? दैट एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ द मैटर। वो एनर्जी यूज हो गई उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में, इसीलिए उसके टेम्परेचर के, वाटर के टेम्परेचर के ऊपर, यानी जो आइस था उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो किस चीज में यूज हो गई? उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में। कौन से स्टेट को कन्वर्ट करने में यूज हो गई? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में यूज हो गई। अब क्यों यूज, वो क्या चीज उसने हटाई उसमें? उसने क्या किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था,
उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और कम करने में, खत्म करने में, लिक्विड बनाने में इस्तेमाल हो गई वो पूरी एनर्जी। तो इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट लेटेंट हीट। इसीलिए हम इसको लेटेंट हीट या हिडन हीट, छुपी हुई हीट कहते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ कम्स टू latent heat of vaporization. Let me again check the time. We got 4 minutes left, so 4 minutes are enough. Okay. So how we are going to define the latent heat? वो वाली हीट जो 1 किलो सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड बनाने के लिए चाहिए, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। किसको? 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए। अब क्योंकि हीट तो एनर्जी है, एनर्जी को हम किसमें नापते हैं? जूल्स में। किसमें नापते हैं? जूल्स में। तो जितनी जूल्स एनर्जी यानी जितनी जूल्स हीट हमको चाहिए, जैसे हम वेट को और मास को किलोग्राम में नापते हैं, तो ऐसे ही एनर्जी को, हीट को जूल्स में नापते हैं। तो कितनी जूल्स हीट हमको चाहिए 1 किलो? किसके लिए? 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए। तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.34 into 10 raised to the power 5 जूल्स पर केजी। ये है। क्लियर? तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको आप लोग चाहो तो लर्न भी कर सकते हो। इसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की लेटेंट हीट, अगेन ये भी वही है। हमारे पास कोई चीज लिक्विड में है, उस लिक्विड को हमने मान लो पानी ही है, उस लिक्विड को हमने बॉईल करना स्टार्ट किया। व्हेन वी स्टार्ट बॉइलिंग इट, हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, क्योंकि 100 डिग्री पे वो बॉईल होता है। एंड वी पुट अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन इट टू रेगुलरली चेक द टेम्परेचर अंटिल होल वाटर गेट डिसअपियर। जब तक सारा पानी डिसअपियर नहीं हो जाता, भिगोने के अंदर से सारा का सारा पानी उड़ नहीं जाता, तब तक उसका टेम्परेचर चाहे कितना मर्जी हीट कर लो 100 डिग्री ही रहेगा। इतनी हीट करने के बाद भी टेम्परेचर 100 क्यों है? क्यों है? जितना हीट करेंगे उतनी तेजी से वेपर्स बनेंगे, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। क्यों है? हिडन हीट, छुपी हुई हीट है। वो क्या कर रही है? छुपी हुई हीट जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और कम कर रही है, लगभग खत्म ही कर रही है। क्यों खत्म क्यों कर रही है? क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं किसमें? गैस में, और लिक्विड में वो ग्रुप बना के थोड़ा बीच में उनमें थोड़ा फिर भी अट्रैक्शन रहता है। तो इसी वजह से वो उनको खत्म कर रही है। उनको खत्म करने में वो सारी हीट एनर्जी लग गई, तो टेम्परेचर को उसने इंक्रीज नहीं किया। समझ आ गया? फिर उसके बाद वो लग गई, और लगने के बाद वो क्या बन गए? वापस से वेपर बन गए। तो यहां पे भी लेटेंट हीट है। अच्छा जी, अब तुम लोगों ने सुना होगा गर्म पानी अगर किसी की स्किन पे गिर जाए, मतलब बर्न हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो स्टीम है यानी कि जो वाटर वेपर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन स्टीम से ज्यादा नुकसान होता है बजाय कि पानी के। अगर किसी की स्किन पे गर्म पानी गिर जाए तो इतना नुकसान नहीं होता, इतना नहीं जलता, लेकिन अगर स्टीम लग जाए गर्म, वो भी जिसमें टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट स्टीम में ज्यादा होती है, छुपी हुई हीट होती है उसके अंदर ज्यादा। हम खूब हीट अंदर ट्रांसफर कर चुके होते हैं, जो वाइब्रेशन पार्टिकल्स होते हैं वो खूब तेज तेज कर रहे होते हैं, लेकिन हीट उतनी ही रहती है, क्योंकि उस वो जो हीट है उसने ओवरकम करने के लिए, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल कर ली गई है वो। तो वो छुपी हुई हीट के कारण, लेकिन है तो सही ना वो हीट, चाहे छुपी हुई है, टेम्परेचर में नहीं आ रही, लेकिन है तो इसीलिए इंजरी ज्यादा होती है स्टीम से, है ना। द बर्निंग ऑफ द स्टीम इज मोर